how can we input our statement. So on that day, I have discussed that uh, how can we input our statement. So we use an input statement with the help of we have store one variable through this input statement, and after that we have to uh, use one. My screen is visible to everybody now. Please confirm. So wait a minute. I want to show you that how we can. So how can we input our uh, uh, values inside the program? So we have to just place a variable called suppose marks. Wait a minute. Why it is not typing? Marks. Yes, I want to store my marks. So we have to write marks. Suppose this is a subject English. So marks underscore English is equals to input. इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर देंगे जो हम मैसेज देना चाहते हैं, एंटर द मार्क्स। ठीक है, हमने इसको इनपुट किया और इसके बाद हमने इसको दे दिया, तो मार्क्स का स्पेलिंग मिस्टेक है। यस, सो लाइक दिस वे वी हैव टू वेट अ मिनट। So see that when I was when I have means run this code, that it display that enter the marks, right? So we have to input enter the marks. So one mistake is there, if I am entering the marks, so we have to put the int function also. So this is 23, it will enter 34, है ना? तो if अभी ये क्या देगा हमको, क्योंकि ये वैल्यू स्ट्रिंग में चलेगी, इसलिए हमको ये क्या देगा, marks. The marks is not defined, so marks underscore English. See, because 34 it is in double quotes, single quotes, so it is used as a string. If we want to enter the marks, or marks is in integer, so what we have to do, we have to write marks, marks is underscore maths is equals to int input function, then input function, then input, then input, enter the marks. राइट, सो इनपुट फंक्शन मार्क्स लिखेंगे हम लोग, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे मैथ्स के मार्क्स। ठीक है, और हमने लगा दिया इंटीजर फंक्शन। तो अब क्या करेगा ये, अच्छा एक ब्रैकेट हमने नहीं लगाया है इसलिए वो ना, एंटर द मार्क्स, राइट, एंटर द मार्क्स हमने लिखा 45। तो अब ये मार्क्स इनपुट हो गए, तो हमने लिखा मार्क्स अंडरस्कोर मैथ्स। तो ये हमको क्या देगा, देखिए 45 दिया। देखिए ऊपर वाला 34 और 45 में क्या डिफरेंस है, जो मैंने ऊपर 34 दिया हुआ है और 45 है, व्हाट इज द डिफरेंस स्टूडेंट, एनीवन? 34 is in
Sorry, students, automatically my computer has shut down. So we will start our class. So uh, we have to see that the uh, screen is not visible. So please wait for some time. Now screen is visible to everyone. My screen is visible to everyone now. Students, please confirm. No, sir. No. Wait a minute. I think. It is visible now. Yes, sir. So, wait. So what we have to do? We have to. हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि what is the difference between that values of 32 and 45? कौन बता रहा था मुझे? Who is telling that what is the difference between 35 and what 32 and 40? Very good. The 32 is an integer value and sorry, 32 is a string value, है ना? It is treated as a string because it is written in single quotes. And when we return 42, it shows that 42 is a integer value. So this is the integer and this is the means string value. ठीक है? तो जब भी हम कोई वैल्यू इंटीजर में देते हैं तो वो वैल्यू जो है हमको, अगर हम इनपुट स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, केवल इनपुट स्ट्रिंग का, तो वो वैल्यू हमको स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है और स्ट्रिंग वैल्यू को ही वो रिटर्न करेगा। और अगर हम इंटीजर वैल्यू को इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वो इंट क्या करेगा, हमें वैल्यूज को जो है वो एंटर नहीं, वैल्यूज जो है वो उसमें विदाउट कोट्स वो रिटर्न करेगा। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे हमने इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इनपुट और हमने लिखा एंटर एंटर योर नंबर, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे पता है कि जब हम इनपुट स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं, देखिए
इनपुट स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं हम, तो हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या करेगी, इस वैल्यूज को, पूरी वैल्यू को स्ट्रिंग में इनपुट करेगी। हमने नंबर जरूर रखा है, नम की वैल्यू जरूर स्टोर करा रहे हैं, लेकिन जो हम वैल्यू देंगे, अब हमें देना क्या पड़ेगा, उसको नंबर ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम नंबर इनपुट करा रहे हैं। हमने इनपुट इंट फंक्शन नहीं लाया हुआ है, यानी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो देखिए हम इसको रन कराते हैं जब, तो हमें एंटर करने के लिए बोलेगा, तो हमने इसमें लिख दिया 23। तो 23 हमारा कौन है, देखो नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू 23 है, ठीक है, क्योंकि ये 23 सिंगल कोट्स में लिख के आ रहा है। और इसका हम टाइप भी देख सकते हैं, टाइप 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 नम, ठीक है। इसका टाइप देखते हैं, तो ये क्या देगा हमको, क्लास स्ट्रिंग देगा। देखिए क्लास स्ट्रिंग दिया इसने, क्यों, क्योंकि 23 जो है हमारा, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का नहीं है। अब अगर हमने लिखा, अब हमने लिखा अब हमने लिखा नम, हमने लिखा नम इंट इंट इंट, और अब हमने लिखा, ये लिखा हमने इंट इनपुट एंटर योर नंबर। तो हमने जब लिखा ये इंट इनपुट एंटर योर नंबर, तो फिर क्या होगा ये, तो ये फिर हमारी वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू को नम इंटीजर में स्टोर करेगा। देखिए एंटर योर नंबर, अब हमने लिखा 45, देखिए वैल्यू उसने कितना दिया, जब हमने नम का वैल्यू प्रिंट किया तो इसने कितना दिया, 45। तो देखिए इसका हम टाइप पता करेंगे, ये किस टाइप का वेरिएबल है, तो ये हमको देगा इंटीजर टाइप का वेरिएबल। देखिए क्लास इंट दिया इसने, तो इसका मतलब कि पहले जब हम स्ट्रिंग वैल्यू लगा, स्ट्रिंग के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, और अगर हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है अगर हमें, तो ये इंटीजर वैल्यू को इनपुट करेगा। इसी तरह से फ्लोट वैल्यू के लिए फ्लोट फंक्शन का, यहाँ पर इंटीजर की जगह फ्लोट का यूज करेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या होगा, इवैल फंक्शन का यूज करते हैं। तो इवैल में क्या होता है, जिस तरह की वैल्यू देते हैं वो उसी तरह की वैल्यू को वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने वैल्यू दिया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को इंटीजर मैंने बता ही दिया आपको सारा ये। इसके बाद अच्छा, अब आ जाते हैं आउटपुट स्टेटमेंट पर, आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट। तो अब हम आउटपुट के लिए आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हम लोग आउटपुट स्ट्रिंग का यूज करते हैं, जिसके लिए प्रिंट फंक्शन है। तो हमने अगर लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखा हमने, ब्रैकेट में लिख दिया हेलो, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज ए स्ट्रिंग, ठीक, ये हमारी स्ट्रिंग। देखिए जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमको हेलो दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। हमने लिखा प्रिंट 4.5, ठीक है, और इसको लिखा हमने स्ट्रिंग में, तो ये भी हमको क्या करेगा, 4.5 रिटर्न करेगा, लेकिन ये वैल्यू किस में होगी, हमारी स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू स्ट्रिंग में ही है 4.5, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हमें प्रिंट स्टेटमेंट्स के कुछ वैल्यूज अगर प्रिंट करनी हो, जैसे हमने हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट्स में कई तरह की वैल्यूज में सेपरेटर का यूज होता है। मतलब सेपरेटर का मतलब कि जो वैल्यू हम प्रिंट करेंगे वो कैसे होगी। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिखा डबल कोट्स में माई कॉमा नेम इज आलोक, ठीक। तो इसका हम प्रिंट देखेंगे, माय नेम इज आलोक आ गया, यानी एवरी वर्ड इज अ नेम, एवरी वर्ड इज यूज्ड एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर हमने इसी को देखिएगा,
अगर हमने इसमें सेपरेटर का वैल्यू कॉमा सेप इज इक्वल टू, क्या लिखा हमने इसमें, हमने लिख दिया सेप इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक, अब देखिए क्या देगा। देखिए माई, फिर जितने भी स्टार हमने सेपरेटर की जगह क्या यूज किया है, ये 4 स्टार यूज किए हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टार क्या करेगा, माई 4 स्टार, फिर नेम, फिर 4 स्टार, फिर एज, फिर 4 स्टार, फिर आलो। ठीक है, तो सेपरेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टार। हम कोई भी वैल्यू इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम अगर हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना हो, ठीक है, तो अगर हमें प्रिंट स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एंटर या स्लैश एन का यूज करेंगे। ठीक है, ये एंड आर्गुमेंट की तरह या न्यू लाइन करेक्टर की तरह स्लैश एन यूज होता है। ठीक है, स्लैश एन is used, it appends a new line at the end of the line unless you give to your end argument consider the fault। इसमें क्या करना है आपको, आपने अगर क्या करना है कि जो हमारे पास एंड लाइन है, जैसे हमने यहाँ से लिखते गए, हमने ये स्टेटमेंट यहाँ से लिखा एंटर द योर नंबर, और आगे तक यहाँ तक लिखते गए। ठीक है, और लिखने के बाद क्या हुआ कि हमारी लाइन छोटी पड़ गई, तो हमने नेक्स्ट लाइन में आना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे ही एंटर करेंगे तो वो एरर दे देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन का यूज करना पड़ेगा, और स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन करेक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट, मैंने लिखा यहां से, क्या मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो मैंने क्या किया, स्लैश एन लिखा, एंटर कर दिया। ठीक है, शायद मैंने स्लैश एन उसी के साथ लिख दिया है, वेट अ मिनट, हमें उसके लिए स्पेस देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से, अच्छा एंड का सिंगल कोट्स में देना है, यस, it is used in a single quotes, so wait a minute, okay, new line character को यूज हम सिंगल कोट्स, wait a minute, why it is not taken, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी पाइथन कभी भी आप दो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे मैंने यूज किया, आपको बोला कि मैंने लिखा माई नेम इज आलोक। ठीक, मैंने ये लिखा माई नेम इज आलोक, और मैंने इसमें इसके साथ ही मैंने एक दूसरा लाइन लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने, अब मैं अगर इसको जाऊँ तो स्ट्रिंग में, यहाँ से नहीं, मैं आपको इसमें बताता हूँ, न्यू फाइल, तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या, प्रिंट ब्रैकेट में माई नेम इज आलोक। ठीक, और हमने यहाँ से एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया, प्रिंट आई एम ए टीचर। अब मैंने दोनों स्टेटमेंट दिए, जब प्रिंट माई नेम इज आलोक, प्रिंट आई एम अ टीचर, तो अब ये क्या करेगा, पाइथन बाय डिफॉल्ट, इसको हम सेव कर लें, इसको हम रन करते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा। देखिए ये माय नेम इज आलोक लिखा है और इसी के नीचे आई एम ए टीचर लिखा है। ठीक है, क्योंकि पाइथन क्या करता है कि दोनों स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली ये इनपुट कर देता है। मतलब कि हमारा जो जो एंड ऑफ द लाइन करेक्टर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्लूड हो जाता है। देखिए यहाँ पर तो ये
आउटपुट देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा ये वाला, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक करेक्टर इनपुट हो जाता है जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है स्लैश एन, ये दिखाई नहीं पड़ती। ये जैसे ही एंटर करते हैं हम लोग तो एंटर की जगह पर ये करेक्टर इनपुट कर लेता है, कौन सा, स्लैश एन। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाता है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, इसीलिए जब दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहा है। तो ये पाइथन ऑटोमेटिकली एडेड अ न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ द लाइन प्रिंटेड सो दैट द नेक्स्ट प्रिंट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, क्योंकि वो नेक्स्ट क्या करेगा, वो प्रिंट जो है वो नेक्स्ट लाइन से ही प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ये वाला करेक्टर जो है वो इनपुट कर देता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन होती है, जिसको न्यू लाइन करेक्टर के नाम से जानते हैं। आपको भी जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तब आप इसका यूज ज्यादा करेंगे। तो अभी आप इसको इतना मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली पाइथन जो है वो एक न्यू लाइन करेक्टर इनपुट कर देता है जैसे ही आप एंटर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटर की वैल्यू जो है वो स्लैश एन होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने एक और चीज दे दी, जरा आपको बता देते हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा, यहां पर हमने कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस दे दिया, एंड इज इक्वल टू यहां पर स्पेस, और यहां से स्लैश एन हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए जरा इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए अब क्या आया, माय नेम इज आलोक एंड आई एम अ टीचर। तो यहां पर आप जब भी वैल्यू देंगे तो अगर आपने एंड इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे दिया तो ये क्या होगा, उसको ये खत्म कर देगा। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। अगर आपने एंड में कोई भी वैल्यू दे दी, ध्यान से सुनिएगा, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है। तो जब बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे थे, जब बाय डिफॉल्ट आप एंड की वैल्यू यहां पर नहीं लिख रहे थे तो ये दोनों जो लाइंस प्रिंट हो रही थी वो एक के नीचे एक आ रही थी, मतलब कि यहां पर ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन कैरेक्टर इनपुट हो रहा था जहां पर कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपने एंड इज इक्वल टू कोई वैल्यू दिया, जैसे आपने मैंने एंड इज इक्वल टू स्पेस दिया है, आप एंड इज इक्वल टू कोई भी साइन, आप हैश दे सकते हैं, एंड इज इक्वल टू हैश देंगे तो ये क्या करेगा, इसको आप रन कराइए तो ये हैश के बाद दूसरी लाइन लिख देगा। देखिए, ये देखिए हैश दे दिया इसने बीच में, ये देखिए ये हैश दे दिया इसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो वहीं पर उसके साथ वो आ जाएगी। जब भी आप एंड का यूज करेंगे तो वो उठाकर उसको नेक्स्ट लाइन में जाकर सेम लाइन में प्रिंट कर देगा। तो अभी माय नेम इज आलोक और इसी के सामने ये नेक्स्ट लाइन में ये वाला लाइन प्रिंट हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का वैल्यूज को, अभी जैसे आप प्रिंट्स की वैल्यू पढ़ेंगे, मतलब कि जिसको बोलना चाहिए नेस्टेड लूप आप पढ़ेंगे, तो ये सब का ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि हम इस वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कर सकते हैं, या एंड इज इक्वल टू स्पेस में हम जाकर कैसे इसको वैल्यूज़ को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। मतलब हमने स्ट्रिंग लगाया हुआ है। आप ये ध्यान रखिए कि पाइथन में जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद अगर दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही नेक्स्ट लाइन में ही जाता है। ठीक है, और जैसे ही आपने एंड इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे देंगे, एंड इज इक्वल टू स्पेस देंगे, कोई देंगे, तो वो वैल्यू उठाकर कहां पर आ जाएगी, उसी सेम लाइन में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आपको वैल्यू जैसे चाहिए वैसे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि द रीजन इज अबव it is quite clear since there is end character given in a space and is equals to space in first print statement, then new line character is not append at the end of output generated in the first printed statement। जब भी आप यहाँ पर end is equals to space दे देंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये स्लैश एन कैरेक्टर जो है इसको डिकम्पोज कर देगा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, जैसे ही आप एंड इज इक्वल टू स्पेस लगाते हैं, जो स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर होता है उसको डिकम्पोज कर देता है, इसको खत्म कर देता है, और प्रिंट जो है वो सेम लाइन में ही हो जाता है। दस द आउटपुट पोजीशन कर्सर स्टेज ऑन द सेम लाइन। तो जो आउटपुट पोजीशन का जो कर्सर है वो यहीं पर रहेगा, कहां पर, जहां पर अभी ब्लिंक कर रहा है, आप लोग देख रहे होंगे।
तो जहां पर वो ब्लिंक कर रहा है वहीं पर वो करेक्टर जो है, नेक्स्ट लाइन जो है, ये वाली नेक्स्ट लाइन यहीं पर आकर प्रिंट होगी जहां पर ये कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स को अगर प्रिंट करें तो उसके साथ भी यही हाल है। इन पाइथन यू कैन ब्रेक एनी स्टेटमेंट बाय पुटिंग स्लैश इज एंड ऑफ द लाइन प्रेसिंग एंटर की। आप क्या करते हैं कि इसके लिए आप स्लैश को यूज करें। तो अगर हमने वैल्यू दिया प्रिंट दिस एंड कॉमा एंड की वैल्यू दिया बाद में, तो यहां से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दिया स्लैश और एंड दिया और यहाँ पर हमने इसको हटा दिया। देखिए अब ये क्या है, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में भी लिखना है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्लैश यूज करते हैं। तो हमने जैसे ही ये स्लैश यूज किया, देखिए तो हमने स्लैश से क्या होगा, ये एंड इज इक्वल टू स्पेस, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने, अगर बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है, तो हमें अगर नेक्स्ट लाइन में लाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नेक्स्ट लाइन है, तो एंटर करने यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्लैश लगाएंगे और उसकी जगह पर द बैक स्लैश एट द एंड मीन्स दैट द स्टेटमेंट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लाइन। मतलब स्लैश एन क्या है, हमने यहाँ से एंटर ना करके हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर देखिए ये ऐसे करके, ये देखिए अभी जितनी वर्ड लेंथ होगी उतना चलता जाएगा ये, ठीक है। और हमें अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना हो, वेट अ मिनट, हमें अगर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्लैश का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में उसको लिख सकते हैं। तो जब भी पाइथन जो इस तरह से होगा तो वो पाइथन जो है उसको इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए उसको मजबूर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हम प्रिंट को नेक्स्ट लाइन में भी, हम अगर इनपुट स्टेटमेंट देना है हमें तो इनपुट प्रिंट में हम इस तरह से दे सकते हैं वैल्यूज को। तो ये बात समझ में आ गई सबको, पॉइंट इज क्लियर, प्लीज कंफर्म। कोई दिक्कत? yes, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से वापस बता रहा हूं, प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में ही आता है, ठीक है। मतलब अगर हमने 2 3 4 प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हुए हैं तो एक के नीचे एक स्टेटमेंट आता रहेगा, ठीक है। और आपने अगर आपने सेम लाइन में लेना है तो आपको इस पर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू स्पेस, क्योंकि एंड इज इक्वल टू स्पेस लगाने पर क्या होता है, जो हमारा स्लैश एन ऑटोमेटिकली जो इंक्लूड हो जाता है उसको वो डिकम्पोज कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो वहां से फिर क्या होगा कि वो उसको उठाकर सेम लाइन पर रख देगा और प्रिंट हमारा सेम लाइन की तरह आएगा, ठीक है, जैसे एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन आती है, ठीक। तो आज आप लोग इसकी फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों। और कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेगा। और कल हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में जो डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट इज डेटा हैंडलिंग। तो अब हम इसके बाद फंडामेंटल के बाद हम लोग डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे, और डेटा हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बेसिक्स हैं पाइथन के, तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक टाइम इज ओवर नाउ एंड वी हैव टू मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, बाय बाय एवरीवन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ दिव्यांजलि बताओ। सर फाइल में जो प्रोग्राम लिखने हैं वो चैप्टर के लास्ट में जो दिए हैं वो लिखने हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम्स में बेटा जब, अब जैसे चैप्टर 1 ही आपने खोल रखा है फंडामेंटल का, ठीक है। अब फंडामेंटल में आपको देखो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, दूसरा प्रोग्राम लिखा है राइट प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। ये प्रोग्राम आपको लिखने हैं सर, यही तो पूछ रही थी।
हाँ हाँ, चैप्टर के लास्ट में, हाँ चैप्टर के लास्ट में जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, या प्रोग्राम Yes, sir. चैप्टर के बीच में भी है बेटा, विद इन अ चैप्टर भी है ना, कभी कभी बीच के चैप्टर्स में भी दे दिए गए, तो यू हैव टू राइट ऑन इट। ओनली Okay, sir. 25 प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड। Okay, sir. Thank you,